going to teach you set off and carry forward of losses. Yeah, I'll try my best to cover all the topics. I'll try my best. If something remains, then what? If you need, I'll take one more day. But which day I'll have to plan and decide because I had not planned accordingly. I had planned for these 2 days. अगर मुझे आपको लगा कि नहीं मैम एंड में और ये 2 टॉपिक्स बचे तो ये भी करवा दो तो करवा दूंगी. Then I'll just decide कि द डे क्या होगा. ठीक है ना? चलेगा? Yes. Let's start. Start करते. Now here set off and carry forward. The first thing in set off and carry forward is there are 3 steps: inter source adjustment, inter head adjustment and carry forward. Now pay attention and listen. As far as I'm going to give you very important hints that I normally give to you in the class, certain questions that you should ask. Believe me, that makes this chapter very easy and simple. So here, inter-source adjustment, let us first understand. ये हर्ष को क्या है? Okay. अब सुनना. Inter-source adjustment में let us understand if there is income from house property. इंटर सोर्स एडजस्टमेंट में अगर इनकम फ्रॉम HP है एंड इनकम फ्रॉम हाउस 1 इज नेगेटिव 4 lakhs. कितना है? नेगेटिव 4 lakhs नको. हाँ नहीं 4 lakhs भी कहीं आ सकता है क्या? हाँ आ सकता है. लेट आउट प्रॉपर्टी में ज़्यादा लॉस हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता. बट ओके, हाउस 1 नेगेटिव 2 lakhs. देन income from house property 2, suppose it is 3 lakhs positive. What will I do? This is set off and beta this is the set off घर के अंदर का adjustment बोलते हैं. इंटर सोर्स मतलब विद इन द सेम हेड. दिस इज घर के अंदर का एडजस्टमेंट. इंटर हेड माने नेबर्स के साथ वाला एडजस्टमेंट. ओके, इंटर हेड इज एडजस्टमेंट विद द नेबर्स. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. इनकम फ्रॉम हाउस 1 नेगेटिव 2 lakhs, इनकम फ्रॉम हाउस 2 पॉजिटिव 3 lakhs. कैन आई डू दिस सेट ऑफ? यस. व्हाई? बिकॉज it is allowed within the same head of income, within the same head I can do. Of course there are rules for inter-source adjustment. Now ma'am, suppose this was not like this, or rather I'll say this income is 1 lakh. Okay, ये income कितना है? 1 lakh. Yes. Now this income is 1 lakh. So income from HP will be negative 1 lakh. अभी घर के अंदर जितना एडजस्टमेंट है उतना कर लिया. अभी नेबर्स के साथ. नाउ नेबर्स के साथ एडजस्टमेंट मतलब दूसरे हेड ऑफ इनकम के साथ. आई डिड द एडजस्टमेंट विद इन द सेम हेड ऑफ इनकम. नाउ आई हैव टू डू द एडजस्टमेंट विद द अदर हेड्स ऑफ इनकम. द अदर हेड ऑफ इनकम इज लेट्स से हियर आई विल से PGBP. नाउ PGBP हियर इज लेट्स से 50,000. सो व्हाट एम आई डूइंग? आई एम एडजस्टिंग दिस. सी ये जो स्टेप होता है इसको बोलते हैं इंटर सोर्स विद इन द सेम हेड ऑफ इनकम. This is called as inter-source adjustment. And when I adjust that negative 1 lakh with the positive 50,000, this is called as inter-head adjustment. This is your inter-head adjustment. Ma'am, ये GTI आता है negative, but I can't have a negative GTI. I would take this as nil, and this will represent carry forward, and it will represent HP loss. और ये क्या represent करेगा? HP loss of 50,000. I will have to carry it forward. I'll have to carry forward a HP loss of 50,000. Now if you understand these simple things that compulsory ये sequence follow करना ज़रूरी है. I can't jump. I can't do first interhead and then I'll do carry forward. No, a sequence is very very important. I have to do intersource पहले घर के अंदर adjustment करने का, फिर neighbors के साथ, और वहाँ पे भी नहीं हुआ तो carry forward. And generally नहीं होता है. अगर आप घर के अंदर एडजस्टमेंट नहीं कर सकते तो जनरली आप बाहर वालों के साथ भी एडजस्टमेंट नहीं कर सकते. द रूल्स आर सेम. नाउ आई टेल यू. We have to simply learn rules of inter-source adjustment, inter-head adjustment and carry forward. We have to simply learn what? Come on, rules of inter-source, inter-head and carry forward.
Now there are simple rules. One rule of intersource is, if there is, see, I'll tell you from here, I'll show it to you, otherwise, yeah. See, loss from speculation business can be set off only against speculation business profit. So come on, loss from speculation business can be set off only against speculation business profit. Long-term capital loss can be set off only against long-term capital gains. Is that clear to everybody? Okay. Now, loss from the activity of owning and maintaining racehorses. You remember yesterday I told you that loss from the activity of maintaining and owning and maintaining racehorses ये casual loss नहीं है. ये हॉर्स रेसेस पे जाके बेटिंग करने वाला नहीं है. ये एक एक्सीडेंट स्पॉट है जो बच्चा करता है कि यार दिस इज नॉट अ लॉस फ्रॉम गोइंग ऑन अ रेस कोर्स एंड बेटिंग ऑन अ हॉर्स. इट्स नॉट दैट लॉस. This is a yes, this is a loss from owning and maintaining horses. Ideally, it is like your business activity, but still we tax it under IOS. Compulsory we tax it under IOS. Loss from such activity can be set off only against income from such activity. Is that clear? This तो is a common rule that no loss can be set off against casual income. यार वो casual income को खुद का खर्चा करना अलाउड नहीं, दूसरे हेड्स का लॉस वो कहाँ से सेट ऑफ करेगा? पॉसिबल ही नहीं है. Loss from specified okay. Loss from specified business can be set off only against specified business. Loss from specified business can be set off only against specified business profit. Ma'am, वो क्या है specified business profit? 14 businesses which are specified in 35 AD. कितना अच्छे से याद आ रहा है क्योंकि कल ही किया है. सो ऐसा तुम खुद को ये मत करो कि मुझे याद नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है. नहीं, आपको याद आएगा. अगर अब भी आप थोड़ा रिवाइज करोगे मेरे साथ और तुरंत पढ़ने को बैठोगे तो यू विल बी एबल टू स्टडी. ओके, नाउ 1 सेकेंड. हाँ, ठीक है. Now, loss from speculation. So, these are the few rules that you will have to remember. Is that okay? Yes. Now, how do we use these rules? I'll teach you the rules for inter-head also. But lagbhag they are same. Again, speculation business loss can be set off only against speculation business profit. Speculation business loss को set off के लिए speculation business profit ही चाहिए. अभी बिजनेस से रिलेटेड पहले बता देती हूँ. स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस प्रॉफिट. और है ना, बिजनेस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी. लोग है ना मस्त पैकी टैक्स प्लानिंग कर रहे थे कि सैलरीड इनकम है, बिजनेस ऑन पेपर है बिजनेस, रियलिटी में बिजनेस है ही नहीं. पार्ट टाइम बिजनेस चालू है कुछ तो उधर लॉस हो गया क्योंकि पता है ना सैलरी में से ज़्यादा टैक्स प्लानिंग करने का स्कोप नहीं है. सो वी यूज टू एंड अप पेइंग लॉट ऑफ टैक्सेस ऑन सैलरी. तो क्या करेंगे यार, तो ऐसा काम करते कि बिजनेस है और बिजनेस का लॉस है. वेरी रिसेंटली अ फ्यू ईयर्स बैक ओनली दिस रूल हैज़ बीन कम अप. Again, I tell you, in income tax, every rule that comes is only a reaction from the government. Okay? आपने जुगाड़ किया इसलिए गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया कि इनकम फ्रॉम loss from business loss cannot be set off against salary income. Very important, business loss cannot be set off against salary income. Within the heads of income also, capital gain का loss should be set off only against capital gain. उसमें भी उनके बहुत नखरे हैं. कैपिटल गेन के ना बहुत क्या है, नखरे. लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस टू बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन. कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन. दैट्स अ वार्निंग बेल. Because the tax rate for short term is different and long term is different. So you have to do tax planning properly. That tax saving होना चाहिए कि आपने set off ऐसा choose करना चाहिए. पता है short term के tax rates अलग है और long term के tax rates अलग है. हाँ, तो क्या है वो tax rates? Of course उसका revision आज capital gains के chapter में होने ही वाला है. So here also let us understand business loss बोल दिया. business loss cannot be set off against salary. Loss from owning and maintaining race horses can be set off only against that income. business के 3 rules है. specified business loss against specified, speculation business loss can be set off only against speculation and business loss cannot be set off against salary. अब दूसरा जुगाड़ बेस्ट सुनना. ये तो बहुत अगेन काफ़ी रिसेंटली आया, तो ये सुन के लेना. लोग क्या कर रहे थे पता है, जब तुमको मैं एचपी पढ़ाती हूँ या आप जब भी एचपी पढ़ते हो तो आपको लगता है यार डीएलओ ये तो हमारे साथ
बहुत हाँ, इट्स इनजस्टिस, नॉट फेयर. वाई मैम मेरा इनकम हुआ नहीं, बट एचपी की स्पेशलिटी है कि नोशनल इनकम इज ऑल्सो टैक्सेबल समटाइम्स. नोशनल रेंट पे भी अपने को टैक्स देना पड़ता है. एक्सपेक्टेड रेंट डीम टू बी लेट आउट, एक्चुअल रेंट नहीं आ रहा है फिर भी रेंट देना पड़ता है. डीएलओ वॉज द बेस्ट टैक्स प्लानिंग. बेस्ट टैक्स प्लानिंग हुआ करता था. ये गवर्नमेंट ने अभी पचका कर दिया. क्या करते थे, ये देखो, अगर मेरा एसओ प्रॉपर्टी है तो जीएवी कितनी नेल. हाँ, जो भी इवन लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चे नोट करना है, लिखना है, अटेंडेंस जैसा है वैसा रखना है, जल्दी जल्दी नोटिंग करते जाना है, लिखते जाना है. नाउ जीएवी नील, म्यूनिसिपल टैक्सेस नॉट अलाउड, राइट. एंड देन आई वुड गेट व्हाट बेटा, एनएवी. NAV, see, you should always know the reason why a provision has been introduced. Don't learn it mechanically. Know it as a logic. Now, I've been teaching for 20 years, so I've seen how this provision was not there and how we were using it. Okay. I had seen how this provision was not there और हम ऐसे यूज़ करते थे. तो ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पे ये GAV नील हो जाएगा. 24 ए स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा. 24 भी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल मिल जाएगा. लेकिन इस पे रेस्ट्रिक्शन है. और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, रेंट है ना प्रॉपर्टी पे बहुत कम आता है. प्रॉपर्टी की वैल्यू है ना बहुत ज़्यादा होती है, उसका इंटरेस्ट है ना बहुत ज़्यादा होता है. तो इनफैक्ट ऐसा होता है कि आपकी सपोज मान लो कि बस जीएवी 2 लाख ही आ रहा है, 20,000 आपका म्यूनिसिपल टैक्स है, तो एनएवी कितना आएगा 1,80,000. मैम 30 म्हणजे 54,000. या 30% ऑफ दिस. डोंट आस्क हाउ इट हैज़ कम. हाँ, देखो डाउट है. हाँ, ओके. नाउ लिसन हियर. तो यहाँ पे मैम अगर मेरा 4,18,000 का इंटरेस्ट होगा ना, पूरा का पूरा अलाउ होगा बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन. नाउ टेल मी यहाँ पे लॉस कितना आएगा. 180 माइनस 54 माइनस 4,18,000, 2,288. ओ अच्छा ठीक है 2,92,000. हाँ ठीक है. सुना क्या. अब अगर मेरा दूसरा इनकम है, मेरा बिजनेस वाला इनकम है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ना सिर्फ 2 लाख का सेट ऑफ अवेलेबल है. इधर कितना है 292. यार डीएलओ में बहुत फायदा होता था कभी कभी. जैसे प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है, रेंट कम आता है, लोन बहुत ज़्यादा लिया है, तो लोग क्या कर रहे थे मस्त पे. इसलिए क्लाइंट को हम बोलते हैं यार तुम छुपाओ मत. यू कमेंट टेल अस प्रॉपर्टी है लेकिन मुझे बतानी नहीं है, तो आई टेल यू बता दो. ऐसा लॉस आएगा 292 का, अपन ऑफसेट करेंगे. बहुत सालों तक किया. इफ एनीबडी हैज रामबाण कैन यू चेक दैट रूल वॉज इंट्रोड्यूस व्हेन 2 लाख का. फिर गवर्नमेंट ने काउंटर रिएक्शन दिया 1819. हाँ, सो एवाई 1819 दैट रूल के मार्च 18. एक्ट कब से 1961 से. मार्च 18 में गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ रिटर्न्स और ये सब देखने के बाद कि एनालिसिस कर रहे कि यार कहाँ क्या हो रहा है. तब उनको पता चला यार इस टाइप का ऑफसेट हो रहा है. अपन ने तो डीएलओ अपने फायदे के लिए बनाया था, लेकिन इधर फायदा तो एसएससी का हो रहा है. गेम उल्टा पड़ गया. फिर गवर्नमेंट में कोई बात नहीं अपन देख लेते. सेट ऑफ के चैप्टर में एक प्रोविजन डाल दिया कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का अगर दूसरे हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ करना है तो मैक्सिमम 2 लाख. सो मैक्सिमम 2 लाख. दिस इज द रीजन. देन दे सेड देखो 2 लाख से कम तो बोल नहीं सकते. कॉन्स्टिट्यूशनली जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा. ऐसो को अपन ने चलाओ किया 2 लाख का इंटरेस्ट, तो उतना तो देना पड़ेगा. मैम फिर एचपी का भले ही इधर लॉस 292 हो, इसका 2 लाख हो, टोटल मिला के 492 हो गया ना. हाँ हाँ घे ना, घे बॅग घे बेटा. दरवाजा तोडू नको फक्त. हाँ उसको बैग दे रहे. हो जा. का बसणार आहेस टॅक्स अटेंड करणार आहेस का. नको. फाउंडेशन ये फाउंडेशन के बच्चों के खेल ऐसे होते हैं. बादल
to CA. हाँ ठीक है. ए focus. Come on. सुनना. इधर 4,92,000 ठीक है लॉस है, और इसके अगेंस्ट ये एचपी का लॉस कितना आया 4,92,000. बहुत सालों तक लोग क्या कर रहे थे, अगर पीजीबीपी was 5 lakhs, people used to set it off and hardly any income. But now HP में रूल आ गया है कि HP का लॉस कैन बी एडजस्टेड विद द अदर हेड. नेबर्स के साथ एडजस्ट करना है तो मैक्सिमम 2 lakhs. तो यहाँ पे तुमको एडजस्टमेंट के लिए अलाउड है 2 lakhs. फिर मैम बचे हुए का क्या करूँ, कैरी इट फॉरवर्ड. मज्जा, बचे हुए का क्या करने का, कैरी इट फॉरवर्ड. यस. नाउ सो लेट अस अंडरस्टैंड द 2 things how these rules came. दोनों भी रूल्स काफ़ी लेट आए. अगर मेरे बुक्स में जनरली आई नोट डाउन दी AY, सो यू कैन जस्ट चेक. ये ऑफकोर्स काफ़ी पहले आया था कि बिजनेस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी. कब आया है, 17-18. सो सी दोनों ईयर्स में 17-18 में एक रूल आ गया कि बिजनेस लॉस को सैलरी के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं करना है. फिर गवर्नमेंट ने रियलाइज किया नहीं रे, इवन डीएलओ का भी मिसयूज हो रहा है. एंड देन 18-19 दे गॉट द रूल सेइंग दैट एचपी लॉस अगर एडजस्ट करना है तो एडजस्ट इट ओनली अप टू 2 lakhs. इज दैट ओके? यस. सो इंटर हेड एडजस्टमेंट में क्विकली स्पेकुलेशन लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट. फटाफट स्पेकुलेशन लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट. तुमको यूट्यूब वालों को सुनाई दिया क्या? अब सुनना. स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस कैनॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी. long term capital loss can be set off only long term capital gain. Short term capital loss can be set off against short term capital gain or long term capital. don't जिसको सुनाई या कंफ्यूजन हो रहा होगा किसी का यूट्यूब पे, लेट ज़्यादा मत चिल्लाओ प्लीज. सो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. इज दैट क्लियर? यस. नाउ एचपी का लॉस मैक्सिमम अप टू 2 lakhs. सो दीज आर द रूल्स फॉर इंटर हेड एडजस्टमेंट. ठीक है क्या? नाउ मैम हाउ डू वी यूज देम एंड हाउ डू वी अंडरस्टैंड. ना सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डेंजर एक्सीडेंट स्पॉट होता है कैरी फॉरवर्ड में. ओके कैरी फॉरवर्ड में क्या होता है, ध्यान से सुनना. याद रखना कैरी फॉरवर्ड म्हणजे पुराना लॉस. कैरी फॉरवर्ड म्हणजे काय, पुराना लॉस. पुराना लॉस जल्दी एडजस्ट नहीं करता. डू यू अंडरस्टैंड? पुराने लॉसेस जल्दी एडजस्ट नहीं करते, नहीं करेंगे. अगर एचपी का लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ है तो उसको एचपी चाहिए. अगर पीजीबीपी का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो उसको पीजीबीपी चाहिए. नाउ अंडरस्टैंड हाउ यू विल मेक मिस्टेक्स. प्लीज व्हेन आई एम सेइंग नोट डाउन थिंग्स, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज लिसन टू मी. आई वांट यू ऑल टू डू रियली वेरी वेल इन दिस एग्जाम. ओके सो प्लीज फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस. नाउ लिसन एंड अंडरस्टैंड ओवर हियर. मैम एचपी का क्या सवाल पूछा खुशल, मुझे नहीं समझा बेटा. नाउ पे अटेंशन, लिसन. या ओवर हियर सी, अगर क्वेश्चन में आपको दिया जाता है, ये देखो गलती बच्चा कहाँ करता है. बिजनेस डीएलओ का मतलब नित्य होता है डीम टू बी लेट आउट. डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी. ओके नाउ बिजनेस लॉस. इफ आई टेल यू बिजनेस लॉस इज 2 lakhs and I tell you there is house property and I tell you there's a house property income of 6 lakhs. Can I do this offset set off कर सकते? हाँ कर सकते. इंटर हेड है ये. मैंने सुनना अगेन, वेट बिफोर आई कम टू दिस एग्जाम्पल लेट मी टेल यू समथिंग. हाँ नहीं, सबसे पहले आपको ये बताती हूँ हाउ शुड यू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस. नाउ फर्स्ट, if there's a short term, forget that example, I'll come to that in a bit. First I'll teach you this, then I'll go there. Short term capital loss 80,000. Then there is a long term capital gain. Keep writing, okay? So then there's a long term capital gain of 1 lakh. बेटा 80,000 का लॉस है और लॉन्ग टर्म गेन है. Ask yourself one question. It's a hint. Yes, and it's going to always help you and you will never go wrong in set off. Which loss I am setting off? Ask yourself one question. Which loss I am setting off? Focus on the loss that you're setting off. So ask the question, which loss I am setting off? Ma'am, I am setting off short-term capital loss.
Is there a rule for short-term capital loss? Say the rule. Short-term capital loss can be set off against short-term capital gain or long-term capital gain. Do I have it? Do I have a long-term gain? Can I do the set off? Why not? So I will get long-term capital gain as 20,000. बेटा लेकिन मैंने यही उल्टा कर दिया. एग्जाम में क्या हो जाता है, यू गेट अ लिटिल कंफ्यूज्ड. So that is why you should always use the hint that I've given you, and the hint is ask yourself which loss I am setting off. Which loss are you setting off? Long-term capital loss. What is the rule for that? Long-term capital loss can be set off only against long-term capital gain. So I can set off only against long-term gain. I don't have a long-term gain. So can I do the set off? No. So ये मेरा जो है short-term capital gain आएगा 80,000. 80,000. मैम ना ये तो हेड के अंदर हो गया, ये घर के अंदर का एडजस्टमेंट है. मैम अगर लॉन्ग टर्म इस लॉस को आगे लेके जाना है, यहाँ पे कुछ हाउस प्रॉपर्टी वगैरह है, तो इंटर हेड के अभी रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे. ये मैंने क्या किया, घर के अंदर एडजस्टमेंट किया. इस एडजस्टमेंट को क्या बोलते हैं? इंटर सोर्स. वाई डू वी से सोर्स? आपको पता है कैपिटल गेन्स कमाने के मल्टीपल सोर्सेज है. बिजनेस, पीजीबीपी में मेरे पास 10 बिजनेसेस है, 4 बिजनेसेस है. दीज आर माई सोर्सेज ऑफ अर्निंग बिजनेस इनकम. दीज आर माई सोर्सेज ऑफ अर्निंग एचपी इनकम, बिजनेस इनकम, ऑल दैट. सो ये होता है इंटर सोर्स एडजस्टमेंट. अब ये घर के अंदर एडजस्टमेंट किया. अब मैं सोचती हूँ यार ये जो लॉस है किधर तो भी ऑफसेट करे ना. मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है 5 लाख. अगेन आस्क योरसेल्फ, मोमेंट इन द एग्जाम सेट ऑफ का चैप्टर अलग से, अगर शायद सेट ऑफ का इंडिपेंडेंटली नहीं आया, कहीं कुछ कंबाइन करके आ सकता है कि लास्ट ईयर कंबाइंड क्वेश्चन में उसका लास्ट ईयर का लॉस था, या सेट ऑफ पे फिर भी दे इंडिपेंडेंटली डू आस्क यू क्वेश्चंस. ओके, नाउ हियर मोमेंट यू सी योर नेगेटिव इनकम, दिमाग में वार्निंग बेल बजना चाहिए कि हमें सेट ऑफ सी इन द एग्जाम. आई टेल यू अगेन, मैंने आपको ऐसे ही आके कुछ प्रोविजन पूछा, आप आंसर दे पाते हो. This is a very important trick that I'm trying to tell you. I ask you a simple provision, you will all answer. But exam में strike होना चाहिए कि ये question या ये adjustment उस provision का है. What happens is you don't try to do this switch in and switch out. In the exam, moment you see some question, first try and identify this concept belongs to which chapter. Give yourself a minute and ask yourself in this chapter what concepts were taught to me. So if it is a negative income, मेरे दिमाग में warning bell आना चाहिए कि this is set off. I have to ask one question. Which loss? See, मैं सिर्फ set off कराऊंगी, सब लोगों को full marks मिल जाएंगे. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि क्वेश्चन सिर्फ सेट ऑफ या सिर्फ एचपी, सिर्फ पीजीबीपी पे नहीं आने वाला है. क्वेश्चन जो आने वाला है वो इंटर रिलेटेड होता है. ओहो, आई कॉल अमर. ओके, सो नाउ क्वेश्चन जो है वो कैसे आने वाला है? इंडिपेंडेंटली नहीं है, इंटर रिलेटेड आने वाले हैं, बराबर है ना. सो आपने क्या करना चाहिए? यू हैव टू गिव योर सेल्फ, यू डोंट से मैम आई गॉट ब्लैंक, बिकॉज यू डोंट गिव योर ब्रेन द टाइम टू स्विच इन फ्रॉम वन चैप्टर एंड टू स्विच आउट ऑफ इट एंड कम टू अनदर चैप्टर. टेल योर सेल्फ ओके, सेट ऑफ में इंटर सोर्स होता है, फिर इंटर हेड है, अच्छा फिर कैरी फॉरवर्ड में ऐसे रूल्स होते हैं कि 8 साल कभी 4 साल, ये जो भी आपको वो रिकॉल करना, फिर आप प्रोविजन अटेम्प्ट करना. डू यू अंडरस्टैंड? Yes, so you have to do that. Now let us understand. He is coming, Amar will come. HP का इनकम 5 लाख से. HP का इनकम कितना है? ऐक ना, तिथला AC बंद करते बॅटरी खराब होईल नाही तर तिथे पाणी ड्रिप होते. सो HP का इनकम कितना है? 5 lakhs, बराबर. आई वॉन्ट टू सेट ऑफ दिस. बेटा ये एडजस्टमेंट करने का, नेगेटिव इनकम आ गया. आस्क योरसेल्फ विच लॉस आई एम सेटिंग ऑफ. मोमेंट यू से विच लॉस आई एम सेटिंग ऑफ, रिकॉल इट्स अ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस. लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. है क्या उधर गेन? नहीं. जो लोग घर के अंदर एडजस्ट नहीं करते ना, वो नेबर्स के साथ भी नहीं करते. ठीक है, हाँ. तो यहाँ पे सुनना, तो इधर ये जो 5 लाख है ये ऐसे ही रहेगा. आपका GTI ये 5 lakhs ऐड होगा HP का. आपका GTI आएगा 5,80,000. आई ट्राइड माई बेस्ट टू ऑफसेट दिस लॉस बट आई couldn't do it, and then this loss has to be carried forward. And then this loss has to be carried forward. So we understood one question to be asked, which loss I am setting off.
ना इसमें व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू अबाउट कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, बेटा व्हेन देयर इज अ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस वो बन जाता है पुराना लॉस। उस लॉस के आगे जब भी ऐसा वर्ड लिखा हुआ होता है ना, ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, मतलब ये पुराना लॉस है, इस साल का लॉस नहीं है, पुराना है। पुराना लॉस जल्दी एडजस्ट नहीं करता, सो ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है ये क्या है? ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस। नाउ व्हाट शुड यू नो अबाउट दिस ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस? मैम दिस ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट बिजनेस इनकम, बट मैम एज अगेंस्ट दिस, अगर मैंने ये जो एग्जाम्पल मैं आपका ले रही थी यहाँ पे, हाँ, see there's a business loss of 2 lakhs and there's a HP income of 6 lakhs. Ask yourself one question, which loss I'm setting off? Business loss. Is it specified business loss? नहीं, एग्जाम में specified शब्द यूज किया तो ही वो specified होगा, एग्जाम में speculation शब्द यूज किया तो ही speculation है, कुछ नहीं हुआ तो वो नॉर्मल है। जैसे कंप्यूटर का बिजनेस है, गारमेंट्स का बिजनेस है, ये नॉर्मल बिजनेस लॉस है। स्पेकुलेशन माने जनरली हम बोलते हैं शेयर ट्रेडिंग, स्पेकुलेशन माने ऐसा बिजनेस जो भी ट्रांजैक्शन बिना एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स के कंप्लीट होता है। माने मैं शेयर मार्केट में आई कैन सेल फर्स्ट एंड देन आई कैन बाय, बेटा व्हेन आई सेल ना I may not be having the shares, still I am allowed to sell. This is speculation. What is this? This is speculation. Any business which is completed without the actual delivery of the goods is called as speculation. Speculation शब्द हुआ तो ही speculation. Specified business शब्द हुआ तो ही specified. वरना ये क्या है? Normal business income. वरना ये क्या है? Normal business income. Is that okay? Yes. So मैम ये business loss है, तो moment you see negative amount, ask yourself which loss I am setting off. I am setting off business loss. Is there a rule for that? Yes. Business loss cannot be set off. Oh, specified business के लिए rule है मैम, स्पेसिफाइड, ये तो स्पेसिफाइड नहीं है मैम। स्पेकुलेशन के लिए रूल है, ये तो नहीं है मैम। बिजनेस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी, हाँ, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बिजनेस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी इनकम, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कैन आई डू द सेट ऑफ? यस, सो आई कैन सिंपली डू दिस सेट ऑफ एंड द आंसर विल बी 4 lakhs। बट मैम हियर दे विल गिव यू वन मोर डेटा। AY 1415 1,50,000, तो क्या आपका आंसर 4 लाख ही होगा? क्या आपका आंसर 2.5 लाख हो जाएगा? 1 2 3 ये डेटा दिया। आई वांट द आंसर, कम ऑन। बिजनेस लॉस भी हुआ 1,50,000 का। बिजनेस लॉस ये कुछ नहीं बोला है, मतलब करंट ईयर का है, जिसके आगे ईयर नहीं लिखा है ना वो करंट ईयर का है। HP इनकम करंट ईयर का है। दो नेगेटिव लॉसेस है, दो बार सवाल पूछना पड़ेगा। पहला इसके लिए पूछो बिजनेस लॉस, मैम व्हाट इज दिस? दिस इज अ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। मोमेंट अ लॉस इज ब्रॉड फॉरवर्ड ना, कैरी फॉरवर्ड में रूल्स होते हैं, इट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट दैट रिस्पेक्टिव इनकम। HP लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट HP, बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेसिफाइड, कैपिटल गेन्स का लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट कैपिटल गेन्स, उसके अंदर भी नखरे, लॉन्ग टर्म अगेंस्ट लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लॉस अगेंस्ट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। HP लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट HP इनकम। कब? ये कैरी फॉरवर्ड के रूल्स है। जब ब्रॉड फॉरवर्ड होता है ना, ये पुराना लॉस बन जाता है, दैट टाइम इट हैज़ दिस। बट स्टूडेंट्स की गलती क्या हो जाती है, इधर वो आंसर देते हैं कितना रे 350 माइनस 2,50,000 आंसर देते, बेटा इट इज़ नॉट 250। ये जो लॉस है, विच लॉस एम आई सेटिंग ऑफ? दिस इज अ पुराना ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस के लिए बिजनेस इनकम ही चाहिए, मेरे पास बिजनेस इनकम नहीं है। So can I do the set off? No. But can I do this set off? Yes. So my GTI will become, और इसको फिर से कैरी फॉरवर्ड अगले साल पुश कर देने का। Is that okay? So understand the difference I'm trying to tell you in the current loss, and so this is a very good example. You can please note this down example. ये एक accident spot होता है, आपको नहीं करनी है ये गलती।
फिर मैं डिटेल में फिर से आपको कैरी फॉरवर्ड के भी बताती हूँ। करेक्ट सुशील कि ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट बिजनेस प्रॉफिट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, किसी भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस के लिए यही रूल होता है। डिड यू नोट दिस डाउन? शॉर्ट टर्म लॉस हुआ तो बेटा इट शॉर्ट टर्म कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। किसका क्वेरी था वो? नेमिका, क्योंकि वो तो उसी हेड के अंदर ही है ना। कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट कैपिटल गेन ओनली, बट विद इन दैट ऑल्सो सिर्फ लॉन्ग टर्म का नखरा है कि लॉन्ग टर्म लॉस बोलता है आई विल सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म गेन। शॉर्ट टर्म का इतना कुछ नहीं, शॉर्ट टर्म लॉस से आई कैन एडजस्ट विथ शॉर्ट टर्म गेन ऑल्सो, आई कैन एडजस्ट विथ लॉन्ग टर्म गेन ऑल्सो। Is that okay? Now pay attention. Of course. Now I'll show you the carry forward ka table, very important. ठीक है, now beta pay attention. There are certain, मैम पहले ब्रॉड फॉरवर्ड को प्रेफरेंस देंगे ना? Yes, I'll come to that also मानसी, wait, I'll come to that also. तुम लोगों को क्या करना है, अभी के जो लेक्चर्स के बाद खुद से पढ़ाई करनी है, खुद से कुछ प्रॉब्लम्स चूज करके सॉल्व करना है। प्रॉब्लम्स देखने नहीं है, यू हैव टू सिट डाउन एंड सॉल्व सम क्वेश्चन। सॉल्व मतलब प्रॉपर एकदम मस्त फॉर्मेट बना के नहीं करने का है, हाँ रफ में पेंसिल से लिख के करने का है, सो दैट इट इज़ डन फास्टर। बट प्रॉब्लम देखना अलग होता है और प्रॉब्लम सॉल्व करना अलग होता है। सॉल्व करने का हमेशा प्रॉब्लम। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड if there's a house property loss, chalo, house property loss can be set off against what? House property loss can be set off against house property. Ma'am, this loss can be set off and carried forward for how many years? It can be carried forward for 8 years. Okay, ma'am, यहाँ continuity of business का सवाल नहीं है. What is very important? Do you know what is section 139(1)? Yes, section 139(1) ये याद रहेगा तो better रहता है. 139(1) is due date of filing ITR. So 139(1) is due date of ITR is income tax returns. Now कुछ तो पनिशमेंट देनी चाहिए। अगर आप आपके रिटर्न्स टाइम में नहीं भरोगे तो कुछ तो पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो सम लॉसेज आर नॉट अलाउड टू बी कैरिड फॉरवर्ड, नॉट ऑल। क्या बोल रही हूँ मैं? ओनली सम लॉसेज कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड इफ द रिटर्न इज नॉट फाइल्ड विद इन ड्यू डेट. ICAI likes this adjustment also. Somewhere in an RTP or somewhere in a question I will tell you what kind of adjustment had come. ठीक है. नाउ इनकम फ्रॉम HP, ये 8 साल होगा। मैम इसका रिटर्न टाइम पे भरा है या नहीं भरा है, फिर भी अपने को HP का लॉस कैरी फॉरवर्ड करने को अलाउ होता है। स्टिल आई कैन कैरी फॉरवर्ड द HP लॉस. Ma'am, but speculation business loss can be set off only against speculation business profit, and it can be carried forward only for 4 years. It can be carried forward only for 4 years. Continuity of business, what is that? I'll explain. But is it necessary to file the return in time? Yes, you're doing business, you better comply यार. तुमको तो बिजनेस कर रहे हो, टाइम पे रिटर्न भरना ही चाहिए. सो यू मस्ट फाइल द रिटर्न विद इन ड्यू डेट. अगर मैंने रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल नहीं किया तो मुझे उस लॉस का सेट ऑफ करने का राइट नहीं मिलेगा, वो आगे कैरी फॉरवर्ड भी नहीं हो जाएगा. तो उसका क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, उसका नुकसान हो गया आपका. ओके हाँ हाँ हाँ, सेम ईयर कैरी फॉरवर्ड. दिस टेबल इज ओनली फॉर कैरी फॉरवर्ड, है ना. दिस रूल्स वी आर लर्निंग ओनली फॉर कैरी फॉरवर्ड. हाँ, उसका सवाल है नहीं मैम इस साल में बिजनेस लॉस है और इस साल पे HP इनकम है और मैं सेट ऑफ कर लूँ और भले ही रिटर्न टाइम पे नहीं फाइल करूँ तो चलेगा. कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट एनी बिजनेस इनकम. यू कैन कैरी इट फॉरवर्ड फॉर 8 years. कंटिन्यूटी नॉट नेसेसरी. रिटर्न फाइलिंग टू बी डन इन टाइम. येस. Specified business loss can be set off only against specified business income. Very very important. It can be carried forward for any number of years. I'll tell you there's a logic to that also. मैंने क्लास में आपको समझाया था, इसका लॉजिक याद होगा तो
ठीक है, नहीं याद होगा तो मैं एक बार बता दूंगी. इट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर 8 years. कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस इज नॉट नेसेसरी. मैम शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. इट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर 8 years. कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस का सवाल नहीं आता. क्या रिटर्न फाइलिंग टाइम पे होना चाहिए? जी हाँ, यस. उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. 8 years and of course return filing has to be in time. Loss from the activity of owning and maintaining race horses can be set off only against income from such activity. Is it necessary to continue this activity? Yes, 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 yes. Very important. You can carry forward this loss only for a period of 4 years. Ma'am, return filing, is it necessary? I must do it in time. Yes, you must do the return filing within due date. Ma'am, unabsorbed depreciation, capital expenditure on family planning, scientific research. This can be set off against any income. Of course, but it has certain rules. It can't be set off against salary. क्यों? क्योंकि ये किस एक्टिविटी कहाँ से हो रहा है? ये बिजनेस की वजह से अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आ रहा है. साइंटिफिक रिसर्च कहाँ से आ रहा है? बिजनेस की वजह से. बिजनेस लॉस सैलरी से सेट ऑफ हो सकता है क्या? नहीं. तो डेप्रिसिएशन भी सैलरी के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं हो सकता. तुम बाकी कोई भी हेड ऑफ इनकम ले लो, लेकिन तुम सैलरी के अगेंस्ट उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते. यू कैन कैरी इट फॉरवर्ड फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर्स. कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस नॉट नेसेसरी. रिटर्न फाइलिंग इट इज ओके इवन इफ यू डोंट फाइल विद इन ड्यू डेट. Now pay attention and understand. Ma'am, you are teaching us this table for carry forward of losses. बेटा carry forward of losses के लिए समझो there are 5 heads of income. सैलरी में तो लॉस होता ही नहीं है, तो सैलरी को कैरी फॉरवर्ड करने का सवाल आता ही नहीं है. बचे 4 हेड्स. 4 हेड्स में से iOS का कोई भी लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना अलाउड नहीं होता है, सिवाय एक, लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज. iOS का लॉस कैरी फॉरवर्ड करना अलाउड नहीं है. iOS के लॉस में से एक ही लॉस कैरी फॉरवर्ड करना अलाउड होता है, एंड दैट इज ओनली लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज. इज दैट ओके? दैट्स द ओनली लॉस दैट यू कैन carry forward. Yes, that is why sometimes when you have to choose that certain incomes can be PGBP or they can be iOS, be smart enough. If it's a loss then you better take it under PGBP, क्योंकि iOS का कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड करना अलाउड नहीं है. मैम अभी 5 हेड्स में से सैलरी को तो लॉस आता ही नहीं है, iOS को लॉस कैरी फॉरवर्ड करना अलाउड नहीं. एक ही है लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज. यार इसको सिर्फ 4 साल का बेनिफिट दिया है और रिटर्न टाइम पे फाइल करना चाहिए. एंड ये एक्टिविटी भी कैरी करोगे तो ही उस एक्टिविटी से इनकम होगा ना. So carrying of this activity is necessary. Ma'am, now remaining 3 heads. HP एक ऐसा हेड है जहाँ से आपने रिटर्न टाइम पे फाइल किया या नहीं किया तो भी चल जाएगा. Constitutionally also I can't deny you that loss. It's a interest. It's a interest. So it's okay. I should allow it. Similarly बेटा, even depreciation या specified business का loss देखो, it can be carried forward for any number of years. यार वो और कुछ नहीं, वो कैपेक्स है. 35 AD में लॉस क्यों आता है? 35 AD के बिजनेस में मेरा 35 AD का बिजनेस प्रॉफिट हुआ 5 लाख, मैंने 50 लाख की मशीनरी खरीदी, तो आई विल से लेस 35 AD, 100% ऑफ कैपेक्स अलाउड. सो नाउ माई लॉस इज हाउ मच? 45 lakhs. So my loss is how much? 45 lakhs. यार what about this 45 lakhs? Now you can't tell me it has an expiry. How does my expenditure have an expiry? Why? How can you tell me नहीं नहीं 8 साल में राइट ऑफ करने का? No, you can't. It's a capex finally. Do you understand loss क्यों आ रहा है? Same as depreciation. What is unabsorbed depreciation? See, if my profit of the business is 2 lakhs and I have a depreciation of 4,50,000. Now मेरा इतना भी प्रॉफिट नहीं बना कि वो मेरा डेप्रिसिएशन अब्जॉर्ब कर पाए. दैट इज वाइट इज कॉल्ड एज अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन. यार तुम इतना भी प्रॉफिट नहीं कर पाए कि तुम तुम्हारा डेप्रिसिएशन अब्जॉर्ब कर लो. क्यों? कल जाके मशीनरी रिप्लेस करना पड़ेगा ही ना. यू शुड एटलीस्ट हैव दैट मच मनी दैट यू आर एबल टू रिप्लेस योर असेट्स. उतना तो कमा लो. प्रॉफिट 2 लाख, डेप्रिसिएशन कितना? 4,50,000. ये नेगेटिव किया 2,50,000. व्हाट इज दिस 2,50,000? मैम दिस इज अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन.
अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन मतलब कुछ नहीं, मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है. दिस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम. इसको रिटर्न टाइम पे भरने की ज़रूरत नहीं है. मैम अगर ऐसा होता कि डेप्रिसिएशन के पहले भी मेरा लॉस ही चाह रहा है और फिर डेप्रिसिएशन लेस किया तो टोटल लॉस आया 650. इसको हम इवन रिटर्न भरते वक्त दो हिस्सों में बाइफर्केट करते हैं. वी शो 2 lakhs एज बिजनेस लॉस. क्यों? बिकॉज दिस लॉस कैन बी कैरीड फॉरवर्ड ओनली फॉर 8 years. दिस लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट नाउ बिजनेस इनकम. कैरी फॉरवर्ड की बातें हो रही, किसकी? कैरी फॉरवर्ड. ये ही अभी बनेगा 4,50,000 बनेगा अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन. दिस कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर्स एंड दिस कैन बी ऑफसेट अगेंस्ट एनी इनकम. एंड डेप्रिसिएशन की चिंता नहीं है. एक हाथ क्लाइंट अभी लेट आ गया रिटर्न फाइलिंग के टाइम, ऐसे चलो ठीक है, पूरा नुकसान तो नहीं हुआ, 4.5 लाख का डेप्रिसिएशन का लॉस तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 2 लाख का नहीं करेंगे. तुम बिजनेस लॉस, कैपिटल गेन वाला लॉस या लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज, ये तुमको कैरी फॉरवर्ड करना है तो यू मस्ट फाइल द रिटर्न इन टाइम. भले फिर उस बिजनेस लॉस में अलग प्रकार हो सकता है, स्पेसिफाइड, स्पेकुलेशन एंड जनरल बिजनेस, या कैपिटल गेन्स में शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म. बट कैपिटल गेन्स के लिए, बिजनेस के लिए और लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज, यू मस्ट फाइल द रिटर्न विद इन ड्यू डेट. You must file the return within due date. Only then loss of that year can be carried forward. Okay? Yes. So is this clear? No loss can be set off against winnings and casual income, be it even unabsorbed depreciation. Unabsorbed depreciation भी आप loss from casual income से set off नहीं कर सकते. Unabsorbed depreciation को salary के against set off नहीं कर सकते, बाकी किसी के income के against set off कर सकते. It can be carried forward for any number of years. Quickly tell me, generally losses are allowed to be carried forward for 8 years. Are there some exceptions? Which one? Speculation business loss can be carried forward for 4 years. Okay. Specified business loss can be carried for any number of years. Unabsorbed depreciation can be carried forward for, try as much as you can repeat with me. And loss from the activity of owning and maintaining race horses can be also carried forward for 4 years. Yes, and वहाँ पे continuity of business is necessary. Now ma'am, what is this continuity word? Now I'll tell you. Business A, ICAI likes this also. They will tell you that business A, start हो गया इसके ना. Today I've got my other laptop. Okay. Business A. बिजनेस ए में मेरा लॉस हुआ 2 lakhs. यार मुझे ना बिजनेस ए जम नहीं रहा है, मुझे नहीं जम रहा है कैसे करने का. somehow I end up doing losses, so I decided to discontinue that business. I started with another business. You know, I can either discontinue business A or I can sell it to somebody else. It's okay. बिजनेस बी मैंने स्टार्ट किया, वहाँ पे मेरा प्रॉफिट हो गया 3,50,000. कैन आई ऑफसेट दिस? यस. कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस इज नॉट नेसेसरी. बिजनेस ए का लॉस क्लेम करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस ए आपने ही कंटिन्यू करना चाहिए. आइदर आप उसको बंद कर दीजिए या आप उसको सेल कर दीजिए. जिसने बिजनेस ए खरीदा वो लॉस नहीं सेट ऑफ करेगा. यार लॉस बिजनेस का नहीं होता है, लॉस मेरा है, मैंने सफ़र किया है लॉस. द पर्सन हु कैरिड ऑन द बिजनेस हैज सफर्ड द लॉस, उसका सेट ऑफ का राइट भी उसी का होता है. बिजनेस इज डिसकंटिन्यूड हो गया, क्या फिर भी उसका लॉस सेट ऑफ हो सकता है? यस मैम. सो वी कैन हैव PGBP ऑफ 1,50,000. व्हाट कॉन्सेप्ट इज दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन? इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस इज नॉट नेसेसरी. कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस इज नॉट नेसेसरी. ये उसके ऊपर है. इज दैट ओके? श्योर एवरीबडी? ठीक है. तो रूल्स तो मैंने ओवरऑल सिखा दिए. रूल्स तो अभी आपको याद है. फ्यू थिंग्स हियर एंड देयर आई विल टेल यू व्हाट आर द पॉइंट्स दैट आई से. ऑफ कोर्स देयर इज ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ, करंट ईयर को बेनिफिट देते, वो कुछ पॉइंट्स है वो सिखाती हूँ अभी. पहले फटाफट मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स देना. लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अगेंस्ट पुराना बिजनेस लॉस, ओनली बिजनेस.
मैम एग्जाम में कैसा पता चले, आइदर कैरी फॉरवर्ड ये शब्द होगा, ब्रॉड फॉरवर्ड शब्द होगा, या उसके आगे ईयर लिखा हुआ रहेगा, कोई पुराना ईयर। एग्जाम में ध्यान देना कि पुराना मतलब बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, 8-10 साल पहले वाला अलाउड है क्या? नहीं। यू कैन कैरी फॉरवर्ड द लॉसेज ओनली फॉर 8 years। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेन, शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन। स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस, only speculation, only speculation business profit। See, again I'll tell you, I have a non speculation, मेरे पास non speculation का बिजनेस है, and here I made a loss of 2,15,000। then I have a speculation business and its profit is 4,15,000। Can I do the set off? Ask yourself one question, which loss I am setting off? I am setting off non-speculation. There's no rule for non-speculation. There's a rule for speculation business. So always focus on which loss I am setting off. Focus on the loss. Ask yourself the question, yeah ma'am, non-speculation, yeah, there's no rule. कोई rule नहीं है, कोई restriction नहीं है, go ahead and do the set off. Can I do the set off? Yes. So the answer will be 2 lakhs. But if I do it ulta, that speculation का loss है 2,15,000, and there is, we've done, in my regular class I have these KYC questions, है ना? So who have done with me, we do what, ऐसे हर कॉन्सेप्ट पे अपन क्या करते हैं, KYC, सैलरी वी हैव KYC, PGBP, एक एक कॉन्सेप्ट पे छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। सो वो आपने पक्का आपके रिवीजन के टाइम सॉल्व करना चाहिए। यस, नाउ लिसन, स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस 2,15,000 एंड नॉन स्पेकुलेशन का प्रॉफिट हुआ 4,15,000। Now ask yourself one question, which loss I am setting off? What is the question? Which loss I am setting off? I am setting off speculation business loss. Is there a rule for that? Yes. Speculation business loss can be set off only against speculation business profit. So can I do the set off? No. Then this is going to be 4,15,000. I will try कि स्पेकुलेशन का नेबर्स के साथ एडजस्टमेंट हो, लेकिन नहीं होता है। जिसके घर के अंदर एडजस्टमेंट नहीं होता उसके नेबर्स के साथ भी एडजस्टमेंट नहीं होता, उसको करना पड़ेगा कैरी फॉरवर्ड। एंड याद रखना, ओनली फॉर 4 years। एंड जब कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ करना चाहोगे तो सेट इट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट। इज दैट ओके? Easy chapter? Yes, now listen what few things you have to keep in mind, few adjustments. Now what happens is, ओके ध्यान से सुनेंगे अभी। सी व्हाट हैपेंस इज, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया जाता है कि बिजनेस, now there is business A, you can note down these examples again, just sitting and watching से भी अच्छा होता है कि आप लिखते जाओ, it's very good, ठीक है? yes, no मुस्कान का सवाल है मैम 2 लाख HP के लिए, ईच प्रॉपर्टी के लिए नहीं है, पूरे HP के हेड के लिए। हाँ, HP के हेड के लिए 2 लाख के मुस्कान, समझा ना? गिव मी अ थम्स अप नाउ। चल मैं कुछ नहीं बोलने वाली, चलो। बिजनेस ए, लवकर चला। हाँ, बिजनेस ए करंट ईयर का प्रॉफिट है 50,000। ए तू क्लास के बाहर जाके पूरा ABCD करके आ रहे। ए बादल, वो ना क्लास, रेगुलर क्लास जल्दी छोड़ के चला गया था ना, पूरी कसर अभी पूरी करे 2 दिन में, है कि नहीं? तू जल्दी गया था ना, आखिरी के दिनों में नहीं था वो क्लास में। चलो, बिजनेस ए, यू आर राइटिंग, राइट डाउन। बिजनेस ए 50,000, यस, एंड बिजनेस ए का लास्ट ईयर का लॉस भी है
AY कौन सा है रे लास्ट ईयर म्हणजे तुम्हारा AY क्या है 22 का लॉस है 4 lakhs। फिर मैम देर इज बिजनेस बी, हाँ देर इज बिजनेस बी, बिजनेस बी में 6 लाख का प्रॉफिट है। कोविड का ईयर था शायद इसलिए सब जगह लास्ट ईयर में लॉस हो गया है। AY 21-22 इधर 55,000। नाउ you know what, no wait, we'll just change some figures। 5.5। ओके नाउ लिसन, किसको तकलीफ हो रही है रे? अब सुनना, लिसन, मेरा मन बहुत करेगा कि पहले तुरंत ये और ये ऑफसेट कर दे, ऐसा करना अलाउड नहीं है। यू नो फर्स्ट यू मस्ट ऑलवेज ब्रिंग टुगेदर करंट ईयर and then brought forward. So ideally in this situation how do we present it? You are not supposed to कि मैम ये A और A को पहले offset कर देते हैं, ऐसा allowed नहीं है। You are supposed to say in PGBP first I will say, over here I'll show, PGBP में first I will say business A and how much is business A 50,000 करंट ईयर का। तो ऊपर हेडिंग क्या देंगे पहले कि करंट ईयर का स्टेटस निकालने का, पहले कंपलसरी होता है ऐसा। एंड दिस इज ICAI's अगेन फेवरेट एडजस्टमेंट, दे लाइक टू गिव यू दिस। सो बिजनेस ए इज 50,000 एंड देन दे विल से बिजनेस बी एंड देन दे विल से व्हाट बेटा बिजनेस बी and then there will be business B and this business B ka profit given is 3 lakh. So my current year status is first 3,50,000. Now from this 350 you can say less brought forward losses. You can say what? Less brought forward losses. मैम brought forward में से भी पहले business A का ले के business B का ले, दोनों लकीली एक ही ईयर के तो कोई भी ले लो, नहीं तो ब्रॉड फॉरवर्ड करते वक्त पहले सबसे पुराना लॉस लेने का, क्योंकि उसके 8 साल जल्दी खत्म हो जाएंगे। सो यू कैन से ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस ए एंड बिजनेस ए में खत्म, इधर इच 4 लाख में से अपन किधर कितना सेट ऑफ कर सकते हैं? ओनली 3,50,000। सो योर PGBP विल बिकम hey यार, otherwise that laptop I'll start with. Okay चलो 3,50,000 correct। now इसमें से I will set off this 4 lakh में से how much set off is possible? 350। so my PGBP will become nil। बेटा my PGBP will become what? nil। मैम what about this 4 में से 3.5 का हुआ, बचा हुआ क्या? 50,000 कैरी फॉरवर्ड, और ये जो बचा हुआ बिजनेस ये ए का और बी का कितना लॉस था? 55,000। ये लॉस भी क्या होगा? कैरीड फॉरवर्ड। इज दैट क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट करंट ईयर स्टेटस देन ब्रॉट फॉरवर्ड, बिजनेस के अंदर भी फर्स्ट करंट ईयर स्टेटस देन ब्रॉट फॉरवर्ड। कीप दिस इन माइंड व्हेन यू आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन द एग्जाम। ओके नाउ अनदर टाइप ऑफ एडजस्टमेंट, लिसन। हो गया ये लिख के? ठीक है, आई विल गो अहेड। क्या नाउ बेटा देखो, ऐसा भी होता है कि मेरा बिजनेस इनकम है। अच्छा कल मैंने PGBP लिया तो एक चीज बोलना कि डेप्रिसिएशन ऑप्शनल होता है क्या? क्लेमिंग ऑफ डेप्रिसिएशन इज मैंडेटरी। देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट विच सेज क्लेमिंग ऑफ डेप्रिसिएशन इज मैंडेटरी। मैम कभी कभी ऐसे क्यों नहीं लेगा? अरे कभी कभी आपको बैलेंस शीट अच्छी दिखानी है, कहीं टेंडर में अप्लाई करना है, बैंक से लोन चाहिए, सो यू नीड टू शो गुड इनकम रिटर्न। इनकम अच्छा होगा तभी EMI भर पाओगे ना, नहीं तो लोन कैसे मिलेगा? बैंक नहीं देती है फिर। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। सो हियर मैम पहले ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस लेस करेंगे, फिर कैरी फॉरवर्ड का लॉस। नहीं नहीं, क्या तेरा मतलब लिखने में गलती हो गई है क्या कुछ? तो
सुनना भी। Okay, now pay attention. Ma'am, business income. Yes, there's a KYC question that depreciation is mandatory. Yeah, you must have finished KYC questions. So, काफी बार KYC is know your concept. So, we have done lot of salary, PGBP and set off also we've done. Okay, now listen. बेटा, of course carry forward के पहले इंटरहेड होगा. Of course carry forward के पहले इंटरहेड एडजस्टमेंट होगा. Now listen. Suppose I have current year's profit. करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, करंट ईयर का साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा 60,000, फैमिली प्लानिंग का एक्सपेंडिचर 40,000 एंड ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस 10 lakhs. तो कभी कभी आपका मन क्या करेगा कि यार ये जो है ना डेप्रिसिएशन, साइंटिफिक रिसर्च, फैमिली प्लानिंग इस साल अब्जॉर्ब नहीं हो गए तो भी चलता है, अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, किसी भी इनकम के अगेंस्ट ऑफसेट होंगे. नहीं, पहले करंट स्टेटस फिर ब्रॉट फॉरवर्ड, पहले करंट स्टेटस. मैम इसमें भी सीक्वेंस है, फर्स्ट डेप्रिसिएशन, सेकेंड साइंटिफिक रिसर्च, थर्ड फैमिली प्लानिंग. वाई? सेक्शन का सीक्वेंस है. डेप्रिसिएशन कम्स अंडर 32, साइंटिफिक रिसर्च 35, फैमिली प्लानिंग 36. तो पहले इसमें से भी क्या होता है, कभी कभी इनकम बहुत ही कम है तो ये लॉस सेट ऑफ करूँ कि वो करूँ कि ब्रॉड फॉरवर्ड करूँ, ऐसा चॉइस करने का जब टाइम आएगा. सपोज दिस वॉज नॉट इवन 550, सपोज दिस वॉज जस्ट 150 एंड देन यू आर वंडरिंग कि बाबा इस प्रॉफिट 150 में से पहले कौन सा सेट ऑफ करूँ. तो देन यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज अ सीक्वेंस. व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ सेट ऑफ? सीक्वेंस ये है कि पहले आपने करंट स्टेटस निकालने का, पहले क्या निकालने का? करंट. उसमें से भी पहले डेप्रिसिएशन, बाद में साइंटिफिक एक्सपेंडिचर एंड बाद में फैमिली प्लानिंग एंड बाद में ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस. मैम और बाद में आया तो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होगा. तो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का इतना चिंता नहीं है. इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम. It can be set off against any income and carried forward for any number of years. बरोबर. तो ये सीक्वेंस का एक कॉन्सेप्ट था. रामबाण में चेक करना what is being left out or what any concept is being left out to tell me. हाँ, एक क्वेश्चन है जो मैंने क्लास में भी करवाया है और मॉड्यूल में भी है. अमन को क्या हो गया? अमन तेरे को डाउट है क्या? ओके, नाउ लिसन बेटा. क्या एक्सेप्शंस? एक्सक्लूड हो गया सिलेबस में से. फिर उसमें एक्सेप्शंस है, इनहेरिटेंस, सेल ऑफ बिजनेस, एलएलपी कंपनी, वो अभी नहीं है. इट्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर इंटर सिलेबस. ओके ओके. तुमको लिया क्या वो क्वेश्चन स्टॉक इन ट्रेड का, डिविडेंड का? दिया है मैंने. रामबाण में दिया, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं लिया है ना. पीजीबीपी का क्या बोल रहा है? हाँ ठीक है, बोलती हूँ. वो बहुत रेयर है, मॉड्यूल ने नहीं कंसिडर किया उसको. हाँ, तो इसलिए मैंने नहीं लिया. चलो, और कुछ है क्या? हाँ, देयर इज अ क्वेश्चन इन द मॉड्यूल विच टॉक्स अबाउट मैम इनहेरिटेंस बिजनेस. अरे इट्स नॉट देयर इन योर मॉड्यूल. क्विकली 1 minute, आई विल डू अ थिंग. मॉड्यूल में मैं एक चीज आपको बोलती हूँ, सुनो ना. मॉड्यूल में
ए चलो, एक मिनट सुनना। नाउ नहीं नहीं, ए कैरी फॉरवर्ड में वो नहीं है, इट हैज बीन एक्सक्लूडेड, इनहेरिटेंस बिजनेस एंड ऑल इज नॉट देयर, ठीक है, ओके। नाउ फटाफट, हैव यू अंडरस्टूड द रूल्स? फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज घर के अंदर, घर के अंदर मीन्स इट इज कॉल्ड एज इंटर सोर्स, इंटर हेड एंड देन कैरी फॉरवर्ड. Pay a lot of attention that sometimes they'll give you loss from betting. Please ignore it. Sometimes there will be winnings given to you. Don't set off any loss against that. Don't set off business loss against salary. Don't set off unabsorbed depreciation against salary. HP का भी उनको पसंद है एडजस्टमेंट. HP का लॉस मैक्सिमम इंटरहेड में 2 लाख तक ही सेट ऑफ हो सकता है. इज दैट ओके? यस, देयर वाज अ क्वेश्चन इन द मॉड्यूल जहाँ पे आपने प्रिजम्पटिव बेसिस अडॉप्ट किया. तो अगर आपने प्रिजम्पटिव बेसिस अडॉप्ट किया तो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ नहीं हो सकता. अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ नहीं हो सकता. इज दैट ओके? क्यों मैम? क्योंकि जब आप प्रिजम्पटिव लेते हो तो इट इज़ प्रिज्यूम्ड दैट ऑल एक्सपेंसेस हैव बीन अलाउेबल. तो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का सवाल ही नहीं आता. हाँ, अगर आप प्रिजम्पटिव ऑप्ट नहीं करते तो आप अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को माइनस कर सकते हो. देयर इज अ क्वेश्चन इन द मॉड्यूल एंड देयर इज अ क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आई हैव ऑल्सो सॉल्व विथ यू इन मंजूषा. नाउ लास्ट वन थिंग आई टेल यू अबाउट सेट ऑफ, देन आई मूव अहेड. इन सेट ऑफ यू मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी केयरफुली. एंड वॉट इज़ दैट वन थिंग? जैसे एक बार ना क्वेश्चन ऐसा आया हुआ था कि बिजनेस लॉस AY 2021 2,40,000, कितना रे? 2,40,000. एंड देन देयर वाज अ नोट सेइंग दैट इस साल का प्रॉफिट, ऑफ कोर्स करंट, दिस इज द करंट ईयर का प्रॉफिट, करंट ईयर का बिजनेस प्रॉफिट इज 5 lakhs. And then there was a note saying that return of AY 2021 was not filed in within due date. Then ये set off नहीं करने का. ये जो ITR है ये belated फाइल किया था, within due date फाइल नहीं किया था, तो इसका लॉस set off नहीं करने का. तो जो है PGBP वैसे ही रहेगा because AY 2021 का लॉस was not filed within due date. Is that clear to everybody? Yes. चलो.